everyone, welcome back to my channel. My name is Niharika Bhaktani and I hope that you all are studying well, preparing well for your examination, or you might have already given the examination. So as you all have seen that जो December 2024 का एग्जाम साइकिल था उसकी आंसर कीज आ चुकी हैं. That is जो एग्जाम्स January 2025 में हुई थी उसकी आंसर कीज are out. So now I'm just going to tell you two things. First of all, how you are going to check the answer keys, that is how you are going to calculate your marks. Secondly, um, what about the cut off rate and आपका नेट आ रहा है, JRF आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इस हिसाब से आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं एंड वेयर यू विल फाइंड द कट ऑफ रेट एंड एवरीथिंग. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू कम ऑन दिस पेज, दैट इज ugcnet.nta.ac.in. यहाँ पे आ गए. ओके, उसके बाद देर इज दिस UGCNet December 2024 क्लिक टू लॉग इन. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप अपने क्रेडेंशियल्स पुट कर दीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू सी दिस पेज. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस पेज, वन यू हैव टू क्लिक ऑन व्यू. उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन चैलेंज. व्यू में आ जाएगा, आपके आंसर की आपको दिख जाएगी एंड चैलेंज में आपको करेक्ट आंसर्स दिख जाएंगे विच आर गिवन बाय NTA. सो आई विल जस्ट गो अहेड विथ दिस. ये है एक चैलेंज आंसर की का पेज विच वी कैन कंसिडर एंड ये है हमारा आंसर शीट. ओके, विच आई हैव ओपन्ड. ओके, नाउ देर आर टू वेज. या तो आप अपने पेन पेपर से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए. यू जस्ट राइट इट ऑन पेन एंड पेपर, द सेम थिंग दैट आई एम राइटिंग ऑन द एक्सेल शीट, और यू कैन जस्ट राइट ऑन द एक्सेल शीट. फिलहाल मैंने प्रेजेंट करने के लिए एक्सेल शीट पुट करी है बिकॉज आई फील दिस इज मोर सिंपल एंड मोर क्विक. ओके, सो मैंने एक गूगल ड्राइव में एक्सेल शीट ओपन करी है where you can see all the features. So first of all, I'll see this where question number 1, 2, 3 all are given, but I do not care about the question. I just care about the question ID, where you can see that question ID में लिखा है 004, 005, 006, 7 and so on. ये सारे line wise जो भी आपकी ID है उस according line wise 150 questions होंगे आपके पेपर में. Okay, so now what you will do is, suppose you just went here. Okay, and now in the Excel sheet from 004 we are starting with 004. So last के 3 digits जो भी हैं आप वो लिख दीजिए, 2 numbers लिखिए and then you select them and drag it. If you drag it, then I think आपकी most of the sheet is prepared. Okay, जहाँ तक है 156 आप वहाँ तक लिख दीजिए. उसके बाद what you can do is just click on insert and click on tick, right? Okay, so you can just insert the tick box, or if you want you can even insert the drop down. Drop down में आप ऐसा कर सकते हैं, या drop down will be actually good. That is, this is यहाँ मैं लिख देती हूँ incorrect and इसे मैं color कर देती हूँ red and I will add another item that is correct. Okay, and then this is done. Okay, now you can see अब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक फॉल्स ट्रू फॉल्स कुछ ऐसा लिखा हुआ है. what I will do, I will just come here on this page and I will see question ID. क्या है question ID? Suppose this is 009. just last 3 digits I have to see that it is 009. उसका आंसर क्या मार्क है? It is 3. In your paper also 009, if it is marked as 3, then your answer for 9th question is actually correct. Okay, similarly now you'll go to the next question. यहाँ मैंने ID देखा 048, that means 48, where the answer marked is 3, and I will go to 48 now and I can see the correct answer is actually 3 given by NTA. तो मैं 48 पे चली जाती हूँ and I'll just put a correct. Okay, next question, let's see, it is 32 where the correct answer marked is 4. So let's go to 32 and the correct answer is actually 4. So here it will be 32 and then correct. Okay, similarly next one 33, 4. Let's check 33, is it 4? Yes,
I'll mark this also correct. That's super. And after that 17 का answer marked है 2. If you can see, it is 2. So I'll just go to question number 17, but यहाँ पे answer marked by NTA is 4. That means हमारा 17th हो गया incorrect. Okay. इसी तरीके से you can just see how many are correct, how many are incorrect. After that you can count your correct ones and you can get the total score simply without even writing it. तो ये तो हो गया हमारा how to check your answer keys. Okay. Now wherever it is incorrect you can actually see कि हाँ क्या incorrect data है और whether that is correctly marked by NTA or if it is not marked by NTA, correctly not marked by NTA. उसके बाद आपको अगर question को claim करना है, basically challenge करना है, then what you have to do for challenging a question, you need to have a proper data on a paper form. मतलब किसी बुक में लाइक आपके मास्टर्स की या आपके बैचलर्स की या आपके स्कूल की बुक में, किसी भी बुक में एग्जिस्टिंग फिजिकल बुक में वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर या उस थ्योरी के बारे में लिखा होना चाहिए. देन ओनली इट इज एक्सेप्टेड बाय एनटीए. अगर वो है आपके पास फिजिकल कॉपी है देन यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट फोटो एंड यू हैव टू अपलोड दैट फोटो हियर, दैट इज चूज इन द गिवन फाइल एंड ऑल. सपोज अगर मेरे पास प्रूफ है कि मेरा आंसर 1 करेक्ट है तो मैं यहाँ 1 क्लिक करके एंड देन मैं यहाँ पे चूज फाइल करके एंड अपलोड कर दूंगी एंड आई विल पे द फी एंड टू चैलेंज द क्वेश्चन. एंड उसके बाद बेसिकली मुझे पता चल जाएगा एनटीए विल कंसिडर दैट आंसर और नॉट. Now, is that fee actually refundable? The answer is no. The fee is not refundable. Secondly, अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन एक्चुअल में गलत है और आपने चैलेंज नहीं किया और आपकी फ्रेंड ने या आपके फ्रेंड ने चैलेंज कर दिया, किसी और ने चैलेंज कर दिया, तो क्या आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे? डोंट वरी, मार्क्स सबको मिलेंगे. एवरी सिंगल पर्सन विल गेट मार्क्स इफ दैट question is challenged by even one person and that proves to be correct. So do not worry about that. अगर आपका क्वेश्चन चैलेंज होता है, पूरे इंडिया में से कोई भी पर्सन अगर चैलेंज करता है, किसी के पास भी प्रूफ है, तो वो अपलोड हो जाएगा और सबको मार्क्स मिलेंगे. ओके. तो आप प्लीज चिंता मत करना कि मैम ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, हाउ टू चैलेंज, वी डू नॉट हैव प्रूफ, विल वी गेट मार्क्स और विल वी नॉट गेट मार्क्स. आप सबको मार्क्स मिल जाएंगे, ये इस बात का तसल्ली रखना. ओके. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड कि आप सब लोग मिलके चैलेंज करते जाएं एंड फी पे करते जाएं. नो नीड. नाउ about the cutoff mark, let me tell you about the cutoff scores. First of all, right now cutoff will not come. It will take 1 or 2 days, maybe just 2 days, 3 days and so on. उसके बाद cutoff आ जाएगा. कहाँ पे आएगा? इसी same site पे आएगा. There will be another notification again कि the cutoff has arrived and you can check the cutoff list. अब cutoff list कैसे आती है and how you will get to know? Like see, सपोज मेरे पास ये कट ऑफ लिस्ट है फॉर जून 2024 साइकिल, ये लास्ट की कट ऑफ लिस्ट है. अगर आपको ये कट ऑफ लिस्ट एक्चुअली में देखनी है टू गेट द आइडिया, देन यू कैन ऑल्सो कम ऑन माई टेलीग्राम चैनल दैट इज निक्स निहारिका एंड वहाँ पे फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगी. ओके. फाइल सेक्शन में मैंने अक्टूबर में मैंने अपलोड करी थी, आपको मिल जाएगी. आपको एक एस्टिमेशन मिल जाएगा. करेक्ट एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको एनटीए ही बताएगा. बट अगर आप ये जून रीनेट एग्जाम की कट ऑफ देखें और आपको अंदाजा लगाना है तो आप ऐसे देख सकते हैं. मान लीजिए मैंने कॉमर्स पे क्लिक किया, कंट्रोल एफ करके कॉमर्स लिखा एंड यहाँ से आई कैन सी दैट कट ऑफ ईयर इन कॉमर्स वाज 99.84 परसेंटाइल एंड सो ऑन. हालांकि कॉमर्स का परसेंटाइल में था इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, बट मान लीजिए अगर किसी का सिर्फ मार्क्स में है कट ऑफ, लाइक एग्जाम्पल साइकोलॉजी का मार्क्स में था, तो हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट का देखते हैं. दैट इज इन द जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी. JRF was 222 and whereas if you want to see only and only net का कट ऑफ that was 198. ओके. कॉमर्स का कैसे पता चलेगा या जिसका परसेंटाइल गिवन है उसका कैसे कट ऑफ का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. You can just put an estimation and you will not be able to calculate the percentile. Okay, right now you really have to wait for NTA to give the final cutoff list. Okay,
So that's it for today. I hope this video was very useful to you. If this was useful, then please share it with your friends too, so that they should not get scared कि कैसे कहाँ क्या search करना है and all that. And also don't forget to like this video and subscribe this channel. Let's crack it. Bye bye.